Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start with physics, and in that we'll start with motion, and after that the force and laws of motion, gravitation and whatever we'll do in the later chapters. So first of all we'll begin with motion, that is the part of kinematics, and in that I'll go till the Olympiad level of class 9th only. I'll not delve into the kinematics of 11th because that will be much high and that will include the differentiation also. So currently we are going to study till the kinematics limited to class 9th Olympiads level, and after that we'll be doing the later chapters. So let's start with motion. Take a minute's time and you can like, share and subscribe my video also. Okay, so let's start with motion. So in motion, first of all, we'll study about what is motion and what is rest. For example, if a person is standing here and he is at rest on the ground, and there is a car initially over here on the ground. Now if, for example, the person has a time watch, right, and say it's 12 o'clock now, and after 15 minutes the person observes that the car is still at the same distance from him as it was at 12 o'clock. So basically the car does not change its position with respect to time and the reference point. So this car will be said to be at rest because it is at the same position, or it is at the same distance from a reference point as it was 15 minutes earlier. Now say another car is there. Right? Initially it was at x distance from the reference point, and later after 15 minutes the person observed that this car, the car 1, changed its position and it went ahead of him. So basically the distance changed, that means the position changed, right? So the car 1 has changed its position with reference to a reference point as well as with reference to time. So this car will be said to be in motion. In simple words, anything which changes its position is in motion. Anything which remains constant is at rest. Now nothing is in absolute motion or nothing is at absolute rest. How? For example, this is the earth and this is the sun, right? Now over here the person was standing and he saw that yes, the car is at the same distance from him and it remains at the same distance for a couple of minutes, and after that he observed. So initially the car was at rest because it remains at the same distance. After certain time this person sees that the car has moved, right? So now the person can see that yes, the car is in motion now. But tell me, the car which was at rest, is it actually at rest if a person sees from the sun? If there is a person on the sun, right, and he sees the car, though the car is at a distance x from the person on the earth, but because the earth also revolves and it rotates, so the car is also rotating with respect to the person. So if initially it was at a distance y from the person, later when it rotates both of them will move. So basically both of them will be in motion with respect to that person. He will see कि भाई दोनों ही move कर रहे हैं. Why? Because the earth is moving and they are on the earth, so they are also moving. That is why nothing is in absolute rest. Though this person sees that the car is at rest, but this person will see that the car is in motion. Though this person will see that the car is in motion, this person will see that the car is at rest. So nothing is at nothing is at absolute rest nor in absolute motion. Now
let's first talk about the scalar and vector quantities. So quantities are those things which are used to measure something, right? Quantities are mainly of two types: physical quantities as well as the combined quantities, or the now first of all we are not going to discuss both of them. Let's first start with whatever is in our syllabus only, because that much will not be asked. Quantities: physical quantities, which are further of two types: scalar and vector. Scalar and vector. What are these scalar and vector quantities? See, basically scalar are those which have magnitude only. For example, if I ask you a question, a car is traveling, right? How much petrol is being consumed by it? Okay, a valid question. How much petrol is being consumed by it? Now, if a car travels from this point to this point through this path, right? This is a road, and you are traveling from, say, Ranchi to Chennai, say for example. So this is the roadway by which you will go. Now, how much petrol will be consumed by you? Will it depend on the actual path, or will it depend like this? Will it depend on the actual path? Yes, obviously, because you are going through the road, and whatever distance you will be covering will be there. So whatever is the actual path traced by you, irrespective of the direction, that will be whatever that distance will be there, that will be needed for calculating the petrol consumed. So basically we don't need to refer to any direction over here. That is why the things which have magnitude only but they don't have direction are called scalar. They don't have direction. Why? Because we don't need them. We don't need the direction over here. So we will treat them as scalar quantities. Whatever has magnitude only and no direction. For example, if the person traveled 10 kilometer, right? So obviously the actual path is 10 kilometer. I am not saying that person has traveled 10 kilometer in the southeast. So that is not needed over here. So the direction is not needed. So this is a scalar quantity. If anywhere you see 10 kilometer only, then it is scalar quantity. Right? Now, this is the scalar. For example, let's take up some examples. Distance, speed, and length, mass, time. These are the physical quantities only which are scalar. They don't need any direction. Mass, time, etc. Okay, so these are scalar. Now let's talk about vectors. Anything which follows the vector law of addition is vector. Now this was a very deep definition. If you got it, then that's very good, but if you didn't get it, then that's also very good, because we don't need to study it right now. Now let's talk about vectors. Have magnitude, have direction also.
For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. Now, what did I write over here? For example, अगर मैं आपसे पूछूं रांची और चेन्नई के बीच में आपने एक्चुअली कितना कवर किया, मैप पे कितना डिस्टेंस है, अगर मैं डायरेक्ट लाइन खींचूं तो इफ मैं डायरेक्ट लाइन खींचूं देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रांची एंड चेन्नई. अगर फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज टू मेक अ रोडवे, अ डायरेक्ट रोडवे connecting Ranchi and Chennai, what will be the length of its roadway? Obviously direct, that means that this will be the roadway, right? Now, so obviously this will be the shortest distance, as we have said that the government is planning to make a roadway, shortest distance होना चाहिए. So this shortest distance will obviously be in a certain direction. अब यहाँ से अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हुआ नहीं ना. यहाँ से अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज लाइक दिस कनेक्टिंग द स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, राइट? सो ऑब्वियसली इट विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. हो सकता है ना, अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है, सो ऑब्वियसली इट विल बी साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट, अब ऑब्वियसली वी हैव, if we have specified the direction, मतलब कि scalar तो होगा नहीं. So if there is magnitude as well as direction, then that is vector quantities. Vector quantities, for example, displacement is represented by S vector. ये ऊपर में जो arrow का symbol में डाल रहा हूँ, ये vector का representation है. Force is represented by F vector. डिस्टेंस को नॉर्मल d से या s से डिनोट किया जाता है. स्पीड को v से डिनोट किया जाता है या s से भी डिनोट किया जाता है. अगर आप डिस्टेंस d से डिनोट कर रहे हैं तो आप स्पीड s से डिनोट करते हैं. अगर आप डिस्टेंस s से डिनोट कर रहे हैं तो स्पीड v से डिनोट होता है. मास ऑब्वियसली m से डिनोट किया जाता है, टाइम t से डिनोट किया जाता है. तो ये हो गया हमारा डिनोशंस. क्या क्या होता है, एब्रिविएशंस सॉर्ट ऑफ. तो ये हो गए हमारे फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज हो गया हमारा. नाउ लेट्स फर्दर गो इनटू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने अभी देखा कि ये दोनों क्या है. ओके, so let's talk about distance and displacement. Distance, and displacement. Let's take an example to understand it. अब एक पहाड़ है, let's say, right? There is a mountain over here, a very high mountain. ठीक है. अब ये दो गांव को जोड़ रहा है. यहाँ भी एक गांव है, right? And over here there is also another town. Now, जाहिर सी बात है, जो लोग दिमाग लगाएंगे, यहाँ से अब लोग कैसे जाएंगे इस गाँव? ऑब्वियसली पहाड़ चढ़ेंगे, पहाड़ चढ़ के फिर इस गाँव में जाएंगे भाई. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन्हें भी इधर जाना है इधर जाना है, लोग पहाड़ से जा रहे हैं. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब जो ज़्यादा अक्लमंद फिजिक्स वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से कुल्हाड़ी मारना शुरू करेंगे. ठीक है, यहाँ से कुल्हाड़ी मारते मारते मारते
ये डायरेक्ट पाथवे बना देंगे, कनेक्ट कर देंगे दोनों शहरों को। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट पाथवे बन गया। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, अब जो यहाँ से चढ़ के जाते थे, अब लोग ऑब्वियसली दे विल गो थ्रू दिस पाथवे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिचुएशन दैट आई एम अज्यूमिंग टू एक्सप्लेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या हुआ, लोग जाते थे ऐसे ही जा रहे थे ना लोग, तो ये हुआ हमारा इनिशियल कंडीशन की। अगर मैं केवल बात करूं, अभी न्यू वाले को भूल जाओ, इनिशियल कंडीशन जो था वो क्या था, लोग यहाँ से जाते थे ऐसे ऐसे करके एंड देन दे यूज्ड टू गो टू दैट टाउन। सो द इनिशियल, द एक्चुअल पाथ, ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस के लिए मैं ये टर्म बहुत बार यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल पाथ क्या है ये, इट इज द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड by D or S, unit is meters, M, मीटर का तो M ही होता है ना, या किलोमीटर। अब उसके बाद तो आप बहुत सारे बना सकते हो, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, तो वो सब तो आप बना ही सकते हो। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड, लोग जाते थे ऐसे, ये मार्कर यहाँ से ऐसे करके गया तो एक्चुअल पाथ यही हुआ। लोग यहाँ से ऐसे जाते थे तो एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअल पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये, शॉर्टेस्ट पाथ। एस वेक्टर से डिनोट करते हैं इसे, यूनिट जो है इसकी वो भी मीटर्स ही है। अब क्योंकि दोनों ही लेंथ को ही डिनोट कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली बोथ आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बट वो अलग बात है कि वो डायरेक्ट है, ये एक्चुअल पाथ है। अभी बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। So, see, डिस्टेंस क्या हुआ, लोग यहाँ से जाते थे तो दिस इज द डिस्टेंस। अब जो दिमाग वाले लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ का पाथवे बना दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लोग जा तो यहाँ से यहाँ रहे थे, जा तो तुम जम्मू से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जाकर के फिर ट्रेन को घुमा के फिर तुम राजस्थान से के डेजर्ट से ले जाकर के फिर भी तुम केरला जा सकते हो। जाने के लिए तो यू कैन गो फ्रॉम जम्मू टिल आंध्रा, देन राजस्थान, देन केरला, बट एक्चुअली में क्या, कहाँ से कहाँ तुम जा रहे हो, तो एक्चुअली में तो तुम जो शॉर्टेस्ट पाथ जो तुम कवर कर रहे हो ना, वो जम्मू से केरला तक का ही है ना। बाकी घूम के तुम कहीं से भी कहीं चले जाओ, जा कहाँ से कहाँ रहे हो, जम्मू से केरला। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स is called the displacement of that point objective. For example, the people used to go like this, so this is the distance covered by them, but actually जा कहाँ से कहाँ रहे, तो जा तो भाई यहाँ से यहाँ ही रहना, चाहे ऐसे घूम के जाओ या जमीन के अंदर से जाओ या ऐसे करके जाओ, जा कहाँ रहे हो, यहीं जा रहे हो। So this is the displacement, shortest path। ये क्या है, ये displacement है, और ये वाला चीज जो है ये है distance, D या S, किसी एक चीज से आप डिनोट कर सकते हो। सी वाई आई एम यूजिंग D और S, D जो है ना वो ज़्यादातर हम में से लोग याद किए हुए हैं, वो बचपन का फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू S इंटू टी, राइट, हमें याद है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब D इज इक्वल्स टू S इंटू टी हम लिखते हैं, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम S को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं।
सो बेसिकली टू अवॉइड द कंफ्यूजन इसे एस वेक्टर ले लिया गया बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे एस वेक्टर बना दिया गया. एंड देन डी और एस यू कैन यूज एनी वन. डी विल बी बेटर. आई वुड रिकमेंड एस बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन में. दैट इज वाई यू कैन यूज ओनली डी फॉर डिस्टेंस. एस जो है आप डिस्प्लेसमेंट के लिए रहने दो. लेकिन याद रखिएगा डी इज इक्वल्स टू एस इंटू टी का जो फॉर्मूला है उसमें एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो स्पीड है. वो स्पीड है. ओके नाउ वेरी गुड, दिस इज डन. सो अब टेल मी वन थिंग. डिस्प्लेसमेंट तो लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. लेट्स अज्यूम कि पहाड़ का लेंथ जो है वो कुछ 100 मीटर है या 500 मीटर. बहुत कम हो गया, 100 मीटर तो कुछ नहीं हुआ. लेट्स अज्यूम ये 500 मीटर है एंड देन ओवर हियर 500 मीटर, राइट. 500 500 1000 मीटर. तो डिस्टेंस क्या हुआ इन दिस एग्जांपल? डिस्टेंस इज 1000 मीटर. अब connecting the two towns, yeah, the base of the mountain is of length how much? 200 मीटर only. बेस जो है वो 200 मीटर का. तो टेल मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. एक्चुअली में the people over here are actually how much they are traveling. In reality, if we check on it, they are traveling from here to here, right? So connecting this point and this point, this is the shortest path, and the length of this shortest path is the base of the mountain, 200 meter. So the displacement that the people are undergoing is actually this path, right? So it is 200 meter in this case. Very good, fine. So what is the ratio of distance and displacement in this case? Let's see. D upon S in case 1 is equals to 1000 over 200. Fine. Now कुछ दिनों में क्या हुआ कि माउंटेन का ऊपर का भाग धीरे धीरे, अब क्योंकि बर्फीला पहाड़ है, लेट्स अज्यूम, तो ऊपर का आइस धीरे धीरे मेल्ट हो गया. आइस एज के समय आइस मेल्ट हो गया भाई, ठीक है, आइस मेल्ट हो गया. तो हमारे पास जो पहाड़ बचा वो बस इतना ही हाइट का बचा, राइट. एंड नाउ इट्स हाइट इज से 300 200 मान लेते हैं, और इस साइड भी अब 200 मीटर बच गया. ना देन 300 मान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सर एक ही बार में कैसे 300 मीटर घट गया? क्या 300 मीटर का बर्फ थोड़ी होता है? अच्छा ठीक है, लेट्स अज्यूम. तो अब ये केस 2 हो गया. तो केस 2 में डिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 600. अब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 का. इन केस 2 इट इज स्टिल 600 over 200. 3. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. अब कुछ लोगों ने खेती की, सो रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन, वेदरिंग, whatever happened, and then again माउंटेन का हाइट गिर गया. इस बार क्या हुआ? माउंटेन कंप्लीटली ड्रॉप. अब लेट्स अज्यूम किसी ने वहां पर बॉम्ब टेस्टिंग की है, तो बॉम्ब टेस्टिंग के बाद पूरा का पूरा माउंटेन का चटनी बन गया, और ये माउंटेन ना रह के अब हिल बन गया. क्या है अब ये? हिल. हाइट 100 200, ये यहाँ पे 200 और ये 100. ब्लॉक माउंटेन बन गया. तो टोटल डिस्टेंस अभी कितना है? 100 प्लस 200 प्लस 100, राइट. यानी कि 300 या 400 मीटर. अब केस 3 है ये, राइट. ये हमारे पास क्या है? केस 3 है. So the distance is how much? 400.
डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 200। क्या है? ठीक है। अब लोग यहाँ से जाने ही नहीं लगे। अब लोग सोचे जाने दो पहाड़ को, अब डायरेक्ट जब रास्ता बन गया तो क्यों जाए। ठीक है, अब लोग जाते ही नहीं इधर से, बहुत अच्छी बात है। अब लोग इधर से जा ही नहीं रहे, पहाड़ को छोड़ दिया लोगों ने, अब लोग इधर ही से जाने लगे। एक्चुअल पाथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ का लेंथ क्या है? 200 मीटर। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, इस दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, तो इसका लेंथ क्या है? इसका भी लेंथ 200 मीटर है। ठीक है जी। तो केस 4 में लेट्स अज्यूम कि अब लोग जाते ही नहीं ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से, तो द डिस्टेंस इज हाउ मच इट इज द एक्चुअल पाथ। तो लोग का एक्चुअल पाथ कितना है? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 200 मीटर। क्या ये 1 है? क्या ये 1 है? आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है ना, दैट स्ट्रेट लाइन which is connecting any 2 points will be the shortest distance। और डिस्टेंस को तो इतना, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है रांची से झारखंड, then you will have to cover this much distance। अगर आप चेन्नई से बैंगलोर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर का रास्ता है, तो मिनिमम 200 किलोमीटर तो आपको कवर करना ही होगा। अगर आपके घर के सामने हाईवे है और बैंगलोर में आपके डेस्टिनेशन के सामने हाईवे खत्म होता है, तो हाईवे के थ्रू भी तो आपको 200 किलोमीटर तो मिनिमम जाना ही होगा ना, तभी ना आप पहुंचेंगे। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। डिस्टेंस को हम रिड्यूस नहीं कर सकते फर्दर, मिनिमम हम 200 कर सकते हैं। बढ़ा तो हम सकते हैं, हम कितना भी घूमना, हम पूरा इंडिया ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर तो करना ही होगा। और मिनिमम डिस्टेंस इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ के सेंस में 1 रहता है, रेशियो उसका। सो व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस होल स्टडी, इस पूरे केस स्टडी से हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस, इस पूरे केस स्टडी से हमें ये पता चला कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या क्या सर नहीं समझ आया? डिस्टेंस है भी, डिस्प्लेसमेंट है, वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या यहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है? क्या मैंने वही लिखा है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिखा है। क्या ये 1 से बड़ा है सारा, या 1 के बराबर है? यानी कि ये रेशियो जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। ये रेशियो क्या है? दिस इज अ रेशियो ओनली ना। कोई भी चीज को अगर डिवाइड करते हो एक्सक्लूडिंग द यूनिट्स, तो क्या बन गया? रेशियो बन गया। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन मार्क इट डाउन एनीवेयर। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इसके साथ हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। Now let's further talk about velocity and speed. Speed and velocity.
वेरी गुड वेरी गुड। कार जा रहा है भाई, जम्मू कश्मीर है, केरला है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। कार इज गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू आंध्रा, देन टू जम्मू, देन टू केरला। सो बेसिकली कार का जो टोटल डिस्टेंस है, राइट, ठीक है, लेट्स से 3500 किलोमीटर कार ने ट्रैवल किया। लेट्स से कितना टाइम लगा, 24 घंटा, ठीक है, या 25 घंटा मान लेते हैं। 25 घंटा ट्रैवल किया इसने। ऑलराइट, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है स्पीड। हमारा स्पीड फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। सो s इज इक्वल्स टू d अपॉन टी। यही तो मैंने किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल गया 140 किलोमीटर। अब इसने टोटल इतना कवर कर दिया। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ ओवर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड आ गया। अब सेम कार है, राजस्थान, JNK, केरला, आंध्र प्रदेश। अब भले इसने ऐसे करके घूम के गया, लेकिन एक्चुअली में भाई वेलोसिटी तो वेक्टर है ना। तो वेक्टर मांगता है कि भाई मुझे डायरेक्शन चाहिए, और वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सी, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले का यूज करके, बिकॉज ये सारे स्केलर क्वांटिटीज में बनाए हुए फॉर्मूले, तो इसी फॉर्मूले को वेक्टर्स में भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, डिस्टेंस है तो इसका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड का वेक्टर है वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म, सेम मेजरमेंट का वेक्टर फॉर्म। टाइम का तो कोई वेक्टर होता नहीं है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम। अब बस इसी से वेलोसिटी निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम। तो एक्चुअली में भाई डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, एक्चुअल पाथ बताओ मुझे और कुछ नहीं पता कहाँ से कहाँ आ गया, मुझे बस इतना बताओ एक्चुअली मैंने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया। तो भाई यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, ऑल राइट 100 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने, एक्चुअली बस 100। अब टाइम तो भाई पूरा 25 घंटा। क्यों 25 घंटा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का है ना दिस थिंग, समझे नहीं समझे। अब आखिर में इसने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, सो बेसिकली डिस्टेंस जो है वो इतना कवर हुआ, कितने घंटे में हुआ। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना था तो ये कितने घंटे में पहुंचा यहाँ से यहाँ, 25 hours. So in 25 hours, after traveling 25 hours, this car reached Kerala. So basically, even if we talk about displacement, then also the time taken by it is 25 hours. The displacement is this, but the time taken to reach Kerala from Rajasthan is 25 hours. ठीक है, वेरी गुड। नाउ जस्ट एज वी डिड, हम सेम रेशियो निकालेंगे। नाउ वी नो, मैंने पहले बताया, अगर डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब क्या मैं ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, सेम क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। क्यों किया, क्योंकि देखो ना, आप ही देख लो, यहाँ भी टाइम सेम ही है, यहाँ भी टाइम सेम ही है, कोई दिक्कत, टाइम कहीं बदल रहा है
नहीं बदल, टाइम बदलेगा भी क्यों, बदलता क्या है, व्हेन यू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, या तुम एक्चुअली से एक्चुअल जो पाथ है या एक्चुअल जो चीज़ है उससे साइड होकर के तुम उसका शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढते हो, तब तुम्हारा रिजल्ट बदल जाता है, लेकिन टाइम नहीं ना बदलेगा। अगर ये यहाँ से अगर मैं बोलूँ दिस मार्कर गोज फ्रॉम हियर टू हियर और दिस मार्कर गोज फ्रॉम हियर टू हियर, आफ्टर ऑल द टोटल टाइम टेकन बाय इट इज दिस मच, तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो भी उसका टाइम कितना लगा पहुँचने में, द सेम, सो टाइम इज ऑलवेज द सेम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज। डिस्टेंस और मैंने टाइम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डाला ना, अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें हैं, मैंने टाइम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं टाइम को इधर बुलाता हूँ, डिस्टेंस को इधर, क्या किया मैंने, देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अपॉन टाइम, ऑल इज वेल। अब यहाँ पे मेन खेल चलेगा, क्या चलेगा, हमें पता है अगर मैं बोलूँ आपको 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, इतना आसान नहीं देते, नहीं तो आप कूद जाओगे। अब लेट्स से, ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स से, या जो इस पर्टिकुलर का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, उससे मल्टीप्लाई कर डालते हैं आप। एक तो अगर मल्टीप्लाई में कोई रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो क्या डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, सोचो, अगर a डिवाइडेड बाई b बराबर a इंटू 1/b, तो क्या अगर 1/b किसी के मल्टीप्लाई में है तो क्या वो a डिवाइड बाई b हो जाएगा, ऑब्वियसली वाइस वर्सा है, अगर ये रूल सही है तो वो भी सही है, तभी ना मैथ्स है। तो अगर ये ऐसे है तो क्या इसका रेसिप्रोकल डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं इसका एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब सभी का मैं एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ। नाउ कैन इट बी रिटन एज डिस्टेंस ओवर टाइम डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, क्या रिवर्स सही है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट है मल्टीप्लाई में, तो रिवर्स में ओके, माने जो भी हमने किया वो सही है, मैथमेटिकली सही है, कहीं कोई एरर नहीं है, कहीं कोई रूल्स नहीं ब्रेक हो रहा है मैथमेटिक्स के। अब क्या मैं डिस्टेंस ओवर टाइम को क्या मैं स्पीड लिख सकता हूँ, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज इन डिवाइड, तो अगर मैंने इसे स्पीड दिया तो s डिवाइड बाई v इज इक्वल्स टू s इंटू 1/v इज इक्वल्स टू s/v, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा, ऑलराइट, तो स्पीड इंटू वेलोसिटी। अब हुआ क्या, चीज ये था, इसका कुछ वैल्यू था, उसको मैंने सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी चीज ये था, इसका कुछ वैल्यू था जो कि ये वैल्यू था इसका, मैंने ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज, मैंने क्वांटिटीज को इधर उधर की, फिर भी मल्टीप्लाई में फिर भी वही चीज़ है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, मैंने सेम का बस डिनोशंस अलग कर दिया, वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो डिनोशंस हमारे पास ये आ गए, फिर भी वैल्यू क्या रहा, सेम रहा, अर्थात दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या आपको समझ में आया, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 as well as distance upon time, distance upon displacement is greater than equal to 1, done। अब इसी के साथ कुछ
इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमारे बहुत काम आएंगी बाद में, अभी जस्ट। और वो बातें क्या है? तो वो बातें ये हैं कि अभी तो हमने मेन बात शुरू ही नहीं की है, अभी तक तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट चल रहे थे। लेट्स स्टार्ट द टॉक नाउ, लेट्स स्टार्ट द टॉक ऑफ द टाउन। स्पीड, पहला यूनिफॉर्म। अब इसे ऐसे नहीं, ऐसे लेट्स स्टार्ट इट इन ए टैबुलर फॉर्म। राइट, ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे अभी, डिफरेंशिएशन बहुत ऊपर का है 9th के लिए, अभी नहीं करेंगे हम डिफरेंशिएशन। स्पीड, यूनिफॉर्म क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बंदा चला यहाँ से 1 मीटर गया 1 सेकेंड में, फिर से 1 मीटर गया 1 सेकेंड में, फिर से 1 मीटर गया 1 सेकेंड में, फिर से 1 मीटर गया 1 सेकेंड में। तो बेसिकली इज ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस in the same units of time. So this is the same distance in same time intervals. Okay, now यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अ पर्सन गोज यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर गया 1 सेकेंड में, फिर ही गोज 1 मीटर 1 सेकेंड, 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 देन ऑल्सो ही गोज 1 मीटर 1 सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली में एक्चुअल पाथ क्या है? डिस्टेंस का यूनिट्स क्या है? 1 मीटर ट्रैवल किया भाई 1 सेकेंड में, फिर से 1 मीटर, फिर से 1, मतलब जो डिस्टेंस है 1-1 मीटर का चल रहा है, सेम डिस्टेंस तो भाई इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, 1-1 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है ना। भले ही उसने ऐसे ट्रैवल किया, लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर से 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर से 1 सेकेंड में 1 मीटर। सो द शॉर्टेस्ट पाथ इज द वेलोसिटी। सो इट इज द सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम intervals. ठीक है, ऑल इज वेल। अभी तक तो बच्चों वाली खेल चल रही है, अभी तो आप यूं सॉल्व कर लोगे, अभी तो पार्टी बाकी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो अभी बाकी है। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल या इक्वल इंटरवल इन अनइक्वल टाइम। मतलब चलो अनइक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, जो भी आपको बात करा। 1 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, 5 मीटर ट्रैवल कर लिया 1 सेकेंड में, 10 मीटर ट्रैवल कर लिया 1 सेकेंड में, और फिर 0.5 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में। तो क्या भले ही टाइम सेम है, क्या डिस्टेंस अलग अलग है? क्या डिस्टेंस अलग अलग है? इसी वजह से, या फिर दिस कंडीशन, और 1 मीटर ट्रैवल करने में तो इनिशियली तो 1 सेकेंड लगा, लेकिन फिर 1 मीटर ट्रैवल करने में उसको 0.2 सेकेंड लगा, फिर से 1 मीटर ट्रैवल करने में उसको 0.1 सेकेंड लगा, फिर से 1 मीटर ट्रैवल करने में उसको 2 सेकेंड लग गया। तो क्या टाइम अनइक्वल हो रहा है इस केस में? क्या टाइम अनइक्वल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
तो भले डिस्टेंस सेम है टाइम अनइक्वल है, या फिर टाइम इक्वल है डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, बोथ द केसेस, ठीक है। इसमें भी सेम चीज, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सो बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर। या फिर दूसरा केस हो सकता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का, यहां से दिस पर्सन स्टार्टेड 1 मीटर 5 मीटर 2 मीटर इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंडीशंस, आइदर both are the shortest path, both are the straight line path, both are the displacement, so equal displacement in unequal time or unequal displacement in equal time. Done. Complete. Very good. Now डन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत आसान है, नाम ही से सब पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। Another important thing is instantaneous. Instantaneous मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मान लो आप आगरा में हो, आपको कोटा जाना है, बीच में जयपुर पड़ता है, लेट्स से, ठीक है। आप गाड़ी में चढ़े, राइट, और यू आर गोइंग टू कोटा। जयपुर में आपको कोई कॉल आया, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया, एंड ही आस्क्ड यू एट व्हाट स्पीड आर यू ट्रैवलिंग, कितने स्पीड पे चल रहे होगी। तो उस समय जयपुर में एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन ही आस्क्ड यू, आप क्या करेंगे? आप स्पीडोमीटर देखेंगे कार का, एंड देन यू विल टेल हिम कि हाँ 110 किलोमीटर पर आवर हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है। सो 110 किलोमीटर पर आवर। फिर कोई पर्सन आपसे पूछा इस पोजीशन पे, तो आपने कहा था कि नहीं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उस समय आप चल रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, over here the speed at the instant, whatever instant is given to you, इस particular time पे क्या speed था, इस particular time पे क्या speed था, इस particular time पे क्या speed था, एक particular point पे तुम्हारा क्या speed था। So that speed is called the instantaneous speed, एक instant पे क्या speed था। Again velocity भी same case, अगर डायरेक्ट पाथ ले लिया जाए हाईवे पे, सीधे हाईवे पे, राइट, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड वेलोसिटी था तुम्हारा, लेट्स से तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे योर वेलोसिटी वाज 120 किलोमीटर पर आवर,
हो सकता है कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, बट मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट वाज योर वेलोसिटी, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट वाज योर स्पीड. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. एक पॉइंट पे क्या था स्पीड वेलोसिटी, जीरो तो हो नहीं सकता ना. ये तो पता चला कार जाम में ही फंसे रह गए. इंस्टेंट पे भी जीरो है, टोटल भी जीरो है. रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रनर है, ओके, ही इज रनिंग, ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, एंड ओवर हियर जो पहले पहुंच गया, एंड ही इज द रेफरी स्टैंडिंग हियर, ही इज द रेफरी. ठीक है, जो पहले पहुंच गया वो जीत गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो यहाँ तक पहुंचना है. रेडी, 1 2 3 go. This person started running. This person also started running, but ये उतना स्पीड से नहीं भाग पाया, बट फिर भी भाग तो रहा है. तो ये पर्सन जीत गया. A1. Now, if we look at this concept, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को और थोड़ा इलाबोरेट करूँ, ये पर्सन था लेट से 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागा, जो कि भाग नहीं सकता है. लेट्स अज्यूम, और ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से ही भाग पाया, या 50 या 70 किलोमीटर लेट्स से. तो एक घंटे में इन 1 आवर दिस पर्सन, मैराथन चल रहा है लेट्स से, तो एक घंटे में ये पर्सन 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर से एक घंटे में पर्सन 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और फिर से एक घंटे में पर्सन 120 किलोमीटर ट्रैवल करके जीत गया. अब एक घंटे में ये पर्सन 70 ट्रैवल किया. नाउ टेल मी, इन 1 hour ओनली दिस पर्सन हैज रीच्ड द 120 किलोमीटर मार्क एंड दिस पर्सन हैज ओनली क्रॉस 70 किलोमीटर. तो आखिर में कितना डिस्टेंस बचा है उनके बीच में? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है पर घंटे. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि देन इट विल गो टू 240 एंड देन इट गो टू 140, तो 100 का बच जाएगा. तो फिर 50 की रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है पर आवर. सो द 50 किलोमीटर पर आवर इस पर्सन को क्या लगेगा कि ये पर्सन मुझसे 50 किलोमीटर पर आवर पीछे होता जा रहा है. एक घंटे में 50 हुआ, अगले घंटे में फिर से 50 हुआ, मतलब टोटल 100 हुआ, फिर से तीसरे घंटे में 150 हो गया. So this person will find that yes, this person is moving behind me at the speed of 50 km per hour. क्यों? Because this person is slow and this person is fast. तो ये तो आगे भागा जा रहा है, तो ये भी तो आगे भाग ही रहा है ना, लेकिन भले दोनों का बीच का फर्क बढ़ता जा रहा है. फर्क बढ़ रहा है तो इस पर्सन को क्या लगेगा कि भाई तुम उतने रफ्तार से पीछे जा रहे हो, फर्क बढ़ रहा है, तुम पीछे जाते जा रहे हो. तो पीछे जाते तो जा रहे हो, लेकिन ये पीछे जाने का स्पीड क्या है तुम्हारा? दिस 50 इज व्हाट? इट इज एक्चुअली 120 माइनस 70. मानते हो या नहीं मानते? 120 माइनस 70 50 होता है. 120 था क्या इस पर्सन का स्पीड, 70 था क्या इस पर्सन का स्पीड. तो जो दो पर्सन यहाँ से स्टार्ट होके आगे जा रहे हैं, तो आगे जा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन उनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है. तो इस पर्सन को लगे भाई तुम उतने स्पीड से पीछे जाते जा रहे हो. किस स्पीड से? तो इसका स्पीड माइनस इसका स्पीड, उसके रफ्तार से पीछे जा रहे हैं. दिस इज द केस इन सेम डायरेक्शन. क्लियर? बहुत क्लियर. वेलोसिटी के केस में भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा. यहाँ पे केवल फर्क पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या, बाकी सारा का सारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा. रिलेटिव वेलोसिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. नाउ this was in same direction. So same direction में क्या होता है, अगर मैं इसको हायर लेवल के बच्चों के लिए बोलूं जो कि आसान भाषा नहीं समझते, उन्हें चाहिए एकदम टॉप क्लास भाषा, तो सेम डायरेक्शन के केस में
रिलेटिव वेलोसिटीज a माइनस बी, जो रट्टू तोता होते हैं रट लें प्लीज, a माइनस बी बहुत काम आएगा। a माइनस बी क्या है? द फास्टर वन इज a वेयर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। सेम डायरेक्शन के केस में a माइनस बी, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब अपोजिट डायरेक्शन के केस में, अब मैराथन था कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तो पहुँच जाना है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू गो टूवर्ड्स हियर, यू ऑल्सो हैव टू रीच हियर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब हो क्या रहा है, लेट्स सी। यहाँ से 120 पर्सन ए था, यहाँ से यहाँ आ गया, पर्सन बी था, वो अभी भाग ही रहे। नहीं अभी नहीं 120 किलोमीटर 1 घंटा हुआ है। सो दिस पर्सन हैज ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर एंड दिस पर्सन हैज ट्रैवल्ड 70, राइट। दूसरे घंटे में ये बंदा चला गया 240 किलोमीटर पे, दूसरे घंटे में ये रह गया 140 पे, तीसरे में चला गया 360 पे, 210, और चौथे में अल्टीमेटली लेट्स से 480 पे पहुंच गया, फाइनल पे पहुंच गया। लेकिन ये कितने पे? अभी 280 पे। ठीक है, अभी दोनों के बीच का फासला कितना है? 200 किलोमीटर पे। नाउ देन दिस पर्सन विल स्टार्ट रनिंग बैकवर्ड्स। अब यहाँ पहुंचने के बाद तो ऑब्वियसली खेल का नियम क्या है, पहुंच जाओ फिर तुमको वापस आना है तभी तुम जीतोगे। अब यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने के बाद अभी तक 4 घंटे हुए हैं एंड देन ए विल स्टार्ट रनिंग बैकवर्ड। तो 1 घंटे में 360 पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। 1 घंटे में क्या होगा? दिस पर्सन विल रीच टू 350, क्योंकि 70 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन कहाँ चला जाएगा फिर? 360 पे चला जाएगा, यानी कि एक्चुअली में इसने 120 किलोमीटर इधर की तरफ ट्रैवल किया और इसने 70 इधर की तरफ ट्रैवल किया। तो दोनों के बीच का अभी क्या फासला रह गया? ये 360 पे आ गया, यानी कि कुछ यहाँ पर 360 होगा, 350 के आगे यहाँ पर 360 किलोमीटर, एंड दिस पर्सन बी इज एट 350। सो द टोटल डिफरेंस बिटवीन देम कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया क्या? 360 माइनस 350 10 किलोमीटर हो गया। नाउ ये 10 किलोमीटर तो हो गया, कितने देर में हुआ? बैकवर्ड स्टार्टिंग के बाद कितने देर में हुआ? ये तो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि ये पर्सन इधर जा रहा है, ये पर्सन इधर जा रहा है, राइट। नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड कि ये 70 ट्रैवल किया और ये बंदा 120 ट्रैवल कर गया, राइट। यही केस हुआ यहाँ पर। सो 10 किलोमीटर बच गया। दिस इज द डिफरेंस इन द और दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। 10 कितने में आया? 1 घंटे में आया। पर्सन 1, पर्सन 2, both of them are moving. So in 1 hour the total difference is 10. But this person will see कि भाई इतना तेज कहाँ से, इतना तेज कहाँ से भाई, इतना तेज। Obviously इस person को लगेगा ना, because this he will assume he is at rest। तो हो क्या रहा है कि ये यूं, जबकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये यूं जा रहा है। तो he will find that this person is moving at so fast rate, और इस स्पीड से दौड़ रहा है कि 1 घंटे में दोनों के बीच का डिफरेंस 10 किलोमीटर कर दिया है। जहाँ 200 था वहां से 10 कर दिया, यानी कि टोटल क्या हो गया? 190 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 190 किलोमीटर घट गया इन 1 आवर। यानी कि जो डिफरेंस हुआ, यानी कि जो दोनों का स्पीड का या रिलेशन जो आएगा, दैट इज 190 किलोमीटर पर आवर। कुछ रिलेशन बनेगा तभी ना 1 घंटे में 190 किलोमीटर घट गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 190 है क्या मैं 190 को 120 प्लस 70 लिख सकता हूं? क्यों? 1 घंटे में दिस पर्सन ट्रेवल 120 एंड 1 घंटे में दिस पर्सन ट्रेवल 70, राइट। सो व्हाट विल दिस पर्सन थिंक
इसे लगेगा कि भाई 120 प्लस 70, he will assume he is at rest, भले ये मोशन में. तो how at what speed will he come towards him? The speed will be the distance covered upon time. The distance covered is 120 plus 70, 190 upon time. यानी कि इसको लगेगा कि ये 190 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तभी 1 घंटे में 190 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया मेरे पास, राइट? 1 घंटे में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज दिस प्लस दिस, राइट, 190. सो दिस पर्सन विल फाइंड दैट इसका स्पीड 190 है, एंड ही विल आल्सो फाइंड कि ये 190 की तरफ मेरे तरफ आ रहा है. सो अगेन, बट इन दिस केस, इन अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है? A plus B. A may be greater than equal to or may be less than B. कुछ भी हो सकता है. A बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर. अब ऑब्वियसली सम है, सम करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना. सम में क्या दिक्कत? वेलोसिटी इज इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारा चीज सेम रहेगा. ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तब तो स्पीड, टाइम, बोट टाइम, सारे ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे. फिजिक्स में अगर मैथ्स इंक्लूडेड कोई चैप्टर है ना, तो बस यही काइनेमेटिक्स है. काइनेमेटिक्स में कोई भी सोल फिजिक्स नहीं है. काइनेमेटिक्स इज समथिंग विच कंप्राइजेस मैथमेटिक्स ऑल्सो, बिकॉज इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप केवल मैथ्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं. only when you know the meaning of the basic terms. अगर आपको एक्सलेरेशन का मतलब पता है, एक्सलेरेशन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस में उसका यूज किया जाता है, कैसे रिलेटिव क्वेश्चंस बनाए जाते, इक्वेशंस बनाए जाते हैं, if you know these things, then only by using maths you can solve kinematics. One of the most easiest chapters of physics का, इसको तो पहले ट्राई पे छक्का मारना है. इसमें कोई सेकंड चांस नहीं, फिर से चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े. एक बार ऐसे पढ़ो, वन शॉट सिक्सर, मोशन कंप्लीट. बस ये लेक्चर पूरा देख लो, मोशन विल बी एंड टू एंड कंप्लीट. अब हमारा कहाँ तक हो गया? इंस्टेंटेनियस, रिलेटिव, सब खत्म. एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अ ट्रेन ऑफ लेंथ, how much? Let's say 3/2 times. A train of length 2 times another train crosses it in 5 seconds when they travel in opposite directions. The train also crosses a man in 3 seconds when the speed of the train is, let's say, 60 meter per second. Find the length of 2 trains and the speed of the other.
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? You can stop the video and attempt this on your own. I hope it is very easy. जस्ट इसमें दिमाग लगाना है, सब कुछ दिया हुआ है। क्या है? ट्रेन 1 जो है, यहाँ नहीं, सोल्यूशन नीचे करते हैं। ट्रेन 1 जो है उसके लिए x है डिस्टेंस या लेंथ जो है ट्रेन 1 का, लेंथ इज x, स्पीड इज 60 मीटर सेकेंड पर सेकेंड दिया ही हुआ है। नाउ ट्रेन 2, ये ट्रेन 1 के लिए था। ट्रेन 2 का लेंथ जो है 2x है, 2 टाइम्स लिखा है। ट्रेन 2 का स्पीड हमें नहीं पता, फाइंड करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, द ट्रेन ऑल्सो क्रॉसेस अ मैन इन 3 सेकेंड्स। ट्रेन है, यहाँ मैन है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये इस पोजीशन पे मैन को क्रॉस किया? अभी तक तो नहीं किया, अभी तो टच भी नहीं किया। ठीक है, ट्रेन अब यहाँ से मूव करके अब ट्रेन यहाँ आ गया, मैन, इंजन जो है मैन को क्रॉस करेगा। ठीक है, क्या इस पोजीशन पे ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया क्या अभी तक? नहीं, ट्रेन तो इतना बड़ा है। मैन को क्रॉस कब करेगा? जब ये पूरा ही मैन से आगे चला जाएगा तब वो मैन को क्रॉस करेगा, यानी कि द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इट्स लेंथ। पहले ये ट्रेन यहाँ था, अब यहाँ मैन को क्रॉस करके गया, और फिर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ चला गया। सो बेसिकली यहाँ अगर मैन है, राइट, पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, देन तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो क्या हुआ? दिस मच। यहाँ पे इंजन था, इंजन यहाँ से यहाँ चला गया। इंजन was initially over here behind the man, now it went this much ahead of the man so that the train completely crosses. So the distance is actually the length of the train. The distance traveled in this case is the length of the train. ये तो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए लिया था एग्जाम्पल। हमें दे रखा है 3 सेकंड में क्रॉस करते हैं। नाउ d is equals to s into t which is equals to 60 into 3 which is equals to 180 मीटर। क्या आ गया? क्या डिस्टेंस आ गया? क्या मैं इसे x की जगह 180 लिख सकता हूँ? क्या अब मैं इसे 2x की जगह 360 लिख सकता हूँ? 180 into 2। नाउ क्या दिया हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कहा? अभी जस्ट आपको कहा है, क्या कहा है? a प्लस बी होता है। a क्या है? स्पीड है। b क्या है? स्पीड है। नाउ इन दिस केस d is equals to s into t, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। d क्या है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू ट्रेन। अब अगेन जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, तो सबसे पहले तो क्रॉस करने के लिए ये लेंथ तो क्रॉस करना होगा। तो सबसे पहले तो ये इंजन को क्या करना होगा? इस इंजन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्रॉस करना होगा। देन इसको खुद के बराबर का लेंथ क्रॉस करना होगा इंजन को, तभी वो पूरा का पूरा ट्रेन से आगे आएगा। मतलब ये कि जो इंजन अभी तक यहाँ पे आया था, उसके बाद फिर पूरा क्रॉस करने के लिए इसको अपने पूरे ट्रेन की लेंथ के बराबर का लेंथ आगे जाना होगा। जितना इसका लेंथ है उतना ही इसको आगे जाना होगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल क्रॉस द कंप्लीट ट्रेन। यानी कि इस ट्रेन ने आखिर में कितना ट्रैवल किया, इस इंजन ने आखिर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, राइट। तो पूरे ट्रेन ने कितना, किसी पार्टिकल को ले लो, अगर ये पार्टिकल है यहाँ से पहले यहाँ गया अपने लेंथ के बराबर, फिर इस ट्रेन की लेंथ के बराबर, तो यानी कि टोटल दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। यानी कि रिलेटिव स्पीड में जब हम देखेंगे तो हर एक चीज़ को रिलेटिव देखना पड़ता है।
दिस इज कॉल्ड द फॉर फ्रेमिंग द रिलेटिव इक्वेशंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th का कोई भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन उठा लोगे, और यू विल फाइंड कि इसमें मैक्सिमम केस में आपको रिलेटिव, हर एक चीज़ को रिलेटिव फाइंड आउट करके इनपुट करना होगा, तभी आपका निकलेगा। अदरवाइज आप एक चीज़ को निकालोगे, दूसरे को निकालोगे एंड देन यू विल रिलेट देम, तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो भी हमें टोटल, मतलब दोनों का रिलेशन में कुछ तो होगा ना, रिलेशन। तो इन दिस केस डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। रिलेशन में तो 180 प्लस 360 इज 540। नाउ रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन यानी a प्लस बी तो सबसे पहले मानना है। एक का स्पीड है 60, लेट दूसरे का स्पीड जो है, अगर मैं लेट इसको x कर लेता हूँ, 60 प्लस x हो गया स्पीड। टाइम भी दे रखा है 5 सेकेंड्स दे रखा है, बिल्कुल 5 डाल दिया मैंने टाइम मल्टीप्लाई में, क्या ये कट गया, 108 आ गया। सो 108 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 108 माइनस 60 यानी कि 48 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब मैं इससे रिप्लेस करके 48 लिख सकता हूँ। ये आंसर हो गया हमारा, और ये हमारा आंसर। लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स मांगा है तो लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स हमने फाइंड कर दिया, स्पीड मांगा है, स्पीड हमने फाइंड कर दिया। वेरी गुड, गुड गुड। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ सो आई रिकमेंड इन दैट केस कि आप फिर से बैक करके रिलेटिव स्पीड का पोजीशन, रिलेटिव स्पीड का पार्ट देखें। बिकॉज सी 9th 10th में कॉन्सेप्ट बनाना इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस एंड सीइंग द सोल्यूशन। दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड आप फिर से, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, इफ दिस क्वेश्चन नहीं बना तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आप वो पार्ट देख लीजिए रिलेटिव स्पीड का, देन यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशन। अब लेट्स गो टू एक्सेलरेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक टुडे। उसके बाद फिर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में यू विल फाइंड इट। ओवर हियर मोशन का नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा, इन दैट यू विल फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन में कहीं भी दिक्कत आती है, यू डोंट अंडरस्टैंड कौन सा वाला इक्वेशन डालना है, कौन सा नहीं डालना है, वो वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ना मोशन, एक्सेलरेशन और जी कहाँ है, स्पीडोमीटर को लेते हैं। ये स्पीडोमीटर रहता है 0 है स्पीड अभी हमारा। अचानक से किसी ने कार को धक्का मारा, अचानक से भागेगा, अचानक से इसकी स्पीड हो जाएगी कुछ, स्पीड चेंज्ड, बिल्कुल चेंज्ड। स्पीड ने क्या चेंज लिया, बिल्कुल स्पीड चेंज हो गया। पहले रेस्ट में था और स्पीड चेंज हो गया। तो स्पीड जो चेंज हुआ, कोई भी चीज अगर यहाँ था, its speed suddenly changed. That change in speed with respect to time is called acceleration. Acceleration is the rate of change of speed. Acceleration का जो definition है, it is the rate of change of velocity because it is a vector. एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर के केस में हम केवल वेक्टर्स लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियली योर वेलोसिटी वाज u, फाइनली योर वेलोसिटी बिकेम v। t सेकेंड्स में आपका वेलोसिटी एकदम से चेंज हो गया। आप हाईवे पे, अभी आप नॉर्मल बिजी रोड पे थे, अचानक से आपने देखा कि हाईवे है, चल गए सीधे हाईवे पे। उसके बाद स्पीड शॉर्ट किए, सीधे 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर। हाईवे पे कौन धीरे चलाते हैं, तो स्पीड चेंज हुआ। इनिशियली आपका था लेट से 30 किलोमीटर पर आवर,
फाइनली आपने कर लिया हाईवे पे 120 किलोमीटर पर आवर, तो कितना का आपने एक्सलेरेशन दिया? 90 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ सर, ये नहीं समझ आया, ये पर आवर स्क्वायर कैसे आया? सी इनिशियली आपका वेलोसिटी u था, फाइनली v हो गया, तो रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज का रेट, यानी एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आया। तो पहले तो टोटल चेंज जो है वो इतना आया, v माइनस यू टोटल चेंज हुआ। अब रेट मांगा है यानी कि पर सेकेंड, तो टोटल टाइम अगर t सेकेंड है तो पर सेकेंड में कितना चेंज है। लेट्स से देखो, अब यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर ये इतना चेंज, सी अगर t सेकेंड्स में आपका चेंज जो है वो v माइनस यू हो रहा है, t सेकेंड्स में आपका चेंज v माइनस यू हो रहा है, तो आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी एक सेकंड में कितना हो रहा है। तो अगर मैं एक सेकंड की बात करूं तो अपॉन t होगा क्या? क्या ये चेंज है? मांग क्या रहा है, रेट, यानी एक सेकंड में, तो एक सेकंड में हमने फुलफिल कर दिया। चेंज मांग रहा है, चेंज हमने फुलफिल कर दिया। भाई ये टोटल में तो चेंज ही है ना, वेलोसिटी का चेंज, तो वेलोसिटी का तो चेंज मैंने फुलफिल कर दिया। अब दिस थिंग दैट वी गॉट ओवर हियर, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से जो हमने पहला चीज डिराइव किया, a is equals to v minus u over t, this can be represented as at is equals to v minus u, v is equals to u plus at, और यही हमारा बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। लेकिन वो हमें अभी नहीं करना, अभी हमें जो करना है वो ये था कि हमें एक्सेलरेशन होता क्या। एक्सेलरेशन अगर मैं दे दूं आपको कि आप इनिशियली 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे थे, फाइनली आपने 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लिया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट यू गेव टू अ कार। अब अगर मैं इसके यूनिट्स में बात करूं, v माइनस यू, यूनिट सब्ट्रैक्ट होती है क्या सर? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर m/s माइनस m/s इज 0। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लेट्स से 5 मीटर है, अब आप 3 मीटर पीछे चले गए, तो क्या डिफरेंस क्या रहा आपका? 2 मीटर, ठीक है। तो क्या 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मीटर? क्या अभी भी मीटर का सिंबल है यहाँ पर? मीटर का सिंबल तो है ही ना, तो मतलब आप सब्ट्रैक्ट भी अगर सेम यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा, यूनिट फिर भी वही रहेगा। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी का, यू का भी मीटर पर सेकंड होगा। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर डालूं तो भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, बिकॉज क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी डज नॉट चेंज द यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल अपॉन टाइम था, टाइम का होता है सेकंड, यानी कि टोटल का अपॉन सेकंड है, यानी कि क्या मैं इसे लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो जो दिमाग वाले होते हैं वो तो सीधे सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर डाल देते हैं, लेकिन क्यों स्क्वायर डालते हैं उसका भी रीज़न है। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है, सी इसका ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। तो आखिर में डिवीजन में लेट्स डिवाइडेड, डिवाइड किए, ये किए, सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। डन, ये हो गए बेसिक्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जी पे चलते हैं। ये जी क्या है? इस जी का ग्रेविटेशन चैप्टर में भी बहुत क्या, उसके बिना तो ग्रेविटेशन चैप्टर ही नहीं होगा, because g is the symbol of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. क्या होता है ये acceleration due to gravity? सी बेसिकली अगर एप्पल गिरा न्यूटन के ऊपर, तो एप्पल क्यों गिरा? हवा में भी तो तैर सकता था, ऊपर भी तो उड़ सकता था, आखिर न्यूटन के ही सर पे क्यों गिरा? Obvious a question है। So anything which falls down
is being pulled. अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 था, अब फाइनली वो नीचे गिरा तो कुछ स्पीड से ही नीचे गिरा, तभी ना वो नीचे गिरा. सम स्पीड मस्ट बी देयर. इनिशियली तो रेस्ट में था, इनिशियली स्पीड वाज 0, बट लेटर कुछ स्पीड आ गया, यानी स्पीड में चेंज आया मतलब एक्सेलरेशन हुआ. एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो इसी को g से डिनोट करते हैं. जो भी अर्थ के कारण एक्सेलरेशन होता है या किसी भी बॉडी का, हेवनली बॉडी का पुल, यूनिवर्सल किसी भी यूनिवर्स के किसी भी बॉडी के पुल को कहते हैं ग्रेविटी. और उसी का जो एक्सेलरेशन कॉज होता है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इनिशियली तो रेस्ट में है हर एक चीज, लेकिन फिर गिरते वक्त गिरा अगर, दैट मीन्स इट हैज सम स्पीड, it falls with some speed. Initially it was at 0, but if you see, it falls with some speed. If it falls with some speed, it is the change in speed. If there is the change in speed, then there is acceleration. Acceleration is g. G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया, तो मैंने अभी जस्ट बताया पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया. Over there you can play a bit back and then you can see how I derived that for a unit of acceleration. Because g is also an acceleration, तो acceleration का जो unit है, the same unit will be of g. Questions को आसान करने के लिए sometimes we use 10 instead of 9.8. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लिया जाता है, ठीक है. तो या तो 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज कर सकते हैं. एक्सेलरेशन ये हो गया. सो ओवर हियर आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स बच्चों वाले कवर किए. आज कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने. नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल खेल शुरू होगा, एंड दैट विल बी देयर ऑफ the equations of motion as well as the graphs. So in the next video we'll be covering the graphs as well as the equations of motion, and we'll derive the equations of motion through the graphs. So whatever is the main thing that will happen in the next lecture. And do like, share and subscribe this video, because see basically it's a very long video and it gives me motivation to keep uploading such videos for you. Okay, so best of luck for your study journey. If you have any concept which is still not clear, you can play the video again and then you can have it cleared. See, because 2 बार प्ले 3 बार प्ले करने से भले आपका टाइम जाएगा, लेकिन 9th 10th में कॉन्सेप्ट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद तो 11th 12th का सीढ़ी आप अपने चढ़ लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो. दैट इज़ वाई अगर कुछ नहीं समझ आया फिर से आप ये लेक्चर देख लो, एंड देन यू विल गेट इट ऑल क्लियर्ड. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.